Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter in history, and this is, in fact, your second book, first chapter of the second book, History Part 2. And overall, if we see, this is the fifth chapter. First book we have completed, and there were 4 chapters. Now, starting with the fifth chapter. Okay, this chapter is interesting. In fact, in the present syllabus of class 12th, this chapter is not there. This has been deleted, and maybe it is included when you appear for your board exams. That is why it is important to cover this chapter. Now, this chapter is about through the eyes of travelers. Now, people travel from all over the place. They travel locally, they travel to far off distances. Some of them, obviously, when they come to a land which is not familiar with with which they are not familiar with. Suppose somebody is coming from Europe and is coming to India. There are a lot of new things that he will find. Okay, he's likely to find new social life, new types of obviously architecture, new types of obviously languages, food, culture, everything. Okay, now most of these travelers, obviously, they come and they see those places and go back, but some of them obviously also note down. Okay, they also write down these accounts, whatever they have seen, whatever differences they find in these cultures, they prefer to note them down. Now, there is one thing very unique, that is, there have been travelers from all over the world, and people have been traveling from time immemorial. But what is interesting is both men and women travel. Okay, but historians, most of the accounts, most of the written part of the which travelers have written is only by men. Okay, even though women have traveled, they have not left much in writing. Okay, so historians are not able to obviously learn anything from the women travelers, but from men who have traveled. Most of them have written down. Okay, we know about Huan Teshang, we know about Fa Hen. Okay, and in this chapter, we'll be basically learning about the accounts. What are accounts? Accounts are there's also one word called travelogue. When travelers, obviously, they travel to some place. जब भी कोई ट्रैवलर कहीं जाता है और उसके बारे में वो लिखता है, उसे हम ट्रैवलॉग्स कहते हैं. यहाँ पे वर्ड ट्रैवलॉग नहीं यूज़ किया गया है. व्हाट देव यूज्ड इज अकाउंट्स. अकाउंट्स इज द डिटेल्स ऑफ देयर जर्नी. वो कहाँ पर गए, उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, उन्हें क्या डिफरेंसेस नज़र आए, उन सब चीज़ों को उन्होंने उसमें जो लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो विल बेसिकली बी लर्निंग अबाउट 3 ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया. देयर हैव बीन मेनी ट्रैवलर्स हु हैव कम टू इंडिया. दे हैव रिटन a lot of things about India, and they are from different time periods. But here in this chapter we are basically focusing our attention to 3 travelers. Okay, the first traveler is Al-Bruni. Okay, Al-Bruni, he was from Uzbekistan. He came from Uzbekistan in the 11th century. Okay, he is the first traveler, and he wrote a lot of things about India. So we will in fact see India, we will try and understand India through the eyes of Al-Bruni. Okay, what he saw here in India and how he interpreted. Okay, so that is what we will try and learn. And then second was Ibn Battuta. He was from Morocco. He came to India in the 14th century. And third was Franco Bernier. He was a Frenchman, came from France, and he came in the 17th century. So 3 travelers, and they did not travel during the same time period. तो हम अल-ब्रूनी के जो अकाउंट्स हैं उससे हम जानेंगे कि 11th सेंचुरी की इंडिया यहाँ पे क्या हो रहा था, कैसा हमारा समाज था, क्या चीज़ें थी. एंड फ्रॉम इब्न बटूटा, ऑब्वियसली बिकॉज ही ट्रैवल्ड इन द 14th century, हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलेगा. एंड फ्रैंको बर्नियर, ही ट्रैवल्ड इन द 17th century, तो उसके बारे में पता चलेगा. नाउ ऑल्सो दे आर डिफरेंट पीपल, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. ही इज़ एन यूरोपियन. इन सब की लैंग्वेजेस अलग है. सो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव हैड सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो. एंड टुडे वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस in detail about
the traveling accounts of Al-Bruni. Okay, he was from Uzbekistan, so we'll be learning about Al-Bruni, okay, how he came here and what he saw and what he wrote. Okay, now travelers, when we go to, suppose we happen to go to Europe, okay, so Europeans, they must be doing their everyday life, and people do not write about everyday life. Suppose an Indian is not interested how a farmer lives. Okay, everyone knows how he lives, what he does, what he eats. Okay, so not many people are interested because everyone knows about it. Okay, but somebody who comes from outside, he'll be more interested in these things, everyday things. ओके हमें लग सकता है कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, बट उनके लिए वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके समाज में, उनके कल्चर में, या जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर वो सब चीज़ें वैसे नहीं होती हैं जैसे कि इंडिया में होती हैं. सेम कुड बी द केस अगर हम यूरोप जाते हैं तो यूरोप में लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके फेस्टिवल्स, उनके कल्चर, वो उनके लिए नॉर्मल चीज़ हो सकती है, एवरीडे की चीज़ें हो सकती हैं, बट हमारे लिए वो इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज ऑब्वियसली फॉर अस they are new. Okay, so when travelers go to new places, वो वहाँ के हिस्टोरिकल बिल्डिंग ही नहीं देखते हैं, वहाँ के कल्चर को फील करते हैं, वहाँ के फूड, वहाँ के लैंग्वेज, सॉन्ग, म्यूज़िक और हर चीज़, क्योंकि उनके लिए वो सब चीज़ें नई होती हैं. ओके, तो ये ट्रैवलर्स जो कि इंडिया आए हैं, इनके लिए इंडिया बहुत अलग था. मोरक्को से आए हों, चाहे उज़्बेकिस्तान, चाहे फ्रांस, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ के कल्चर और इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था. तो सारी चीज़ें वो समझ भी नहीं पाए, कई सारी चीज़ों को वो रिलेट भी नहीं कर पाए. ओके, तो यही सब हम चीज़ें देखेंगे इसमें. नाउ अल-ब्रूनी, ही वाज बॉर्न इन उज़्बेकिस्तान, एंड उज़्बेकिस्तान से उनका इधर आना कैसे हुआ, पंजाब. ओके, और ये वो पंजाब है, अभी का पंजाब नहीं, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान, पंजाब डिवाइड हो चुका है. पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब इज़ इन पाकिस्तान. ओके, लेकिन हम ये उस समय पंजाब की बात कर रहे हैं जब ऑब्वियसली पाकिस्तान तो नहीं था, एंड दैट यूनाइटेड पंजाब. तो यहाँ पर वो कैसे पहुँचे. ओके, ख्वारिज़म, KHWARIZM, ख्वारिज़म एक जगह है उज़्बेकिस्तान में, and Al-Bruni was born there. Al-Bruni was born in 973 in Khwarizm. Okay, and जो कि अभी प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में है. तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ, and it was an important center of learning. He was a learned man. He knew lot of things because he came from a place जहाँ पर ऑब्वियसली इट वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग. जैसे इंडिया में है AMU की वजह से अलीगढ़ हैज़ बीन कंसिडर्ड सेंटर ऑफ लर्निंग. इलाहाबाद, ऑब्वियसली ये एंशिएंट हमारे पुराने हमारे लर्निंग सेंटर्स हैं. नालंदा हुआ करता था. तो दीज आर सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड दे एग्जिस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में दिस प्लेस वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग. यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का माहौल था और इसी माहौल में जन्म हुआ अल-ब्रूनी का. ओके, एंड व्हाइल ही वाज ग्रोइंग अप he learned a lot of things. He knew many languages. Okay, and he was well versed in several languages. Well versed means he knew those languages pretty well. So he knew Syriac. Syriac is a language spoken in Syria. Okay, मिडिल ईस्ट में है ये कंट्री. अरेबिक, सऊदी अरब का जो एरिया है वहाँ पर जो अरबी बोली जाती है जिसमें कि कुरान लिखी हुई है, तो अरेबिक. पर्शियन, पर्शिया, ये अभी जो प्रेजेंट डे ईरान है वो पर्शिया कहलाता था और वहाँ की लैंग्वेज पर्शियन. हीब्रू, ये जीव्स की लैंग्वेज थी, क्रिश्चियनिटी से पहले ये थे और इनकी लैंग्वेज थी हीब्रू. एंड ऑफ कोर्स संस्कृत. नाउ आउट ऑफ दिस लैंग्वेजेस यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तो लैंग्वेजेस शायद अलग अलग रीज़न की है. ये सीरिया की लैंग्वेज है, ये अरब एंड पर्शियन. बट हाउ कम ही न्यू ऑल दिस लैंग्वेजेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने संस्कृत कैसे सीखी. ओके, तो अल-ब्रूनी का जन्म हुआ उज़्बेकिस्तान, ख्वारिज़म जो कि उनका पुराना नाम है उस जगह का, वहाँ पर. एंड ऑल्दो ही डिड नॉट नो न्यू ग्रीक, उन्हें एक और लैंग्वेजेस को ठीक से नहीं आती थी, ग्रीक आती नहीं थी, बट ही वॉज फेमिलियर. उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड ऑल ने जो कुछ लिखा उसके अरेबिक ट्रांसलेशंस को उन्होंने पढ़ा था. सो ही हैड वास्ट नॉलेज. उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस पढ़े एंड ही वाज अ लर्नड मैन. ओके, एंड व्हेन
in 1017 CE, okay, the present this year, okay. So now in this year Mahmud Ghazni, you must have heard this name, okay, and Mahmud Ghazni, and उन्हें सुल्तान महमूद के नाम से जाना जाता है। गज़नी इसलिए क्योंकि वो गज़नी उस जगह से थे। सो सुल्तान महमूद ऑब्वियसली उन्होंने इस जगह को रेड किया, ओके, इन्वेड किया, ख्वारिज़म को वहाँ पे गए, उसे इन्वेड किया, ओके। सो इन 1017 when Sultan Mahmud invaded Khwarizm, he took several scholars and poets along with him. Now महमूद गज़नी, सुल्तान महमूद, उन्होंने इंडिया को भी कई बार रेड किया और यहाँ से भी कई बार वो हीरे ज़वाहरात प्रॉपर्टी, सोना चांदी यहाँ से लेकर गए वो, और ऐसे ही वो अलग अलग जगह से कई सारे स्कॉलर्स और इन सब को भी लेकर गए। बेसिकली हिज पर्पस वाज ही वांटेड टू मेक गज़नी, वो जो जगह है अफ़गानिस्तान में भी, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है गज़नी, उस जगह को he wanted to convert that into a center of learning, of good architecture. He wanted to build it into a very nice place. इसलिए वो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को भी लेकर आए। एंड जब उन्होंने ख्वारिज़म पर इन्वेड किया, वहाँ से कई सारे वो पोएट्स और स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स को वो वहाँ से लेकर आए, ओके। एंड उन्हीं में से थे अल-ब्रूनी, ओके। तो अल-ब्रूनी को एक होस्टेज बना के, एक बंदी बनाकर ख्वारिज़म से लाया गया गज़नी, ओके। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे, उन्हें ऑब्वियसली सुल्तान महमूद लेकर आए थे अपने साथ, और वो उन अकेले ही नहीं थे, और भी पोएट्स और स्कॉलर्स को गज़नी लेकर आए थे। ही अराइव्ड इन गज़नी एज अ होस्टेज, बट ग्रेजुअली ही डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर द सिटी। इनफैक्ट गज़नी को भी सुल्तान महमूद को भी अल-ब्रूनी के इंटेलिजेंस की दाद देनी पड़ी। ही वॉज ऑब्वियसली क्वाइट सपोर्टिव कि इसको इतना कुछ आता है, एंड ही वांटेड टू यूज़ हिम फॉर हिज ओन बेनिफिट, और उन्होंने अल-ब्रूनी को काफ़ी सपोर्ट भी किया बाद में। सो ही अराइव्ड इन गज़नी एज अ होस्टेज, बट ग्रेजुअली ही डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर द सिटी, एंड फिर वो यहीं गज़नी में ही रहे, एंड 70 ईयर्स तक वो यहीं पर रहे, उन्होंने यहाँ काम किया, और उनकी डेथ भी गज़नी में ही हुई। So it was in Ghazni that Al-Bruni developed an interest in India, और गज़नी में उन्हें इंडिया के बारे में उन्हें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि ये जगह ऑब्वियसली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, और यहाँ पे इंडियन कल्चर की लोगों को पहचान होगी, ओके। तो इसीलिए एंड उन्होंने इंडियन सब्जेक्ट्स, इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, ख्वारिज़म में नहीं। उन्होंने जब गज़नी आए तो फिर गज़नी में उन्हें इंडिया के बारे में बहुत जानकारी मिली। लाइक ही लर्नड अबाउट एस्ट्रोनॉमी, ही लर्नड अबाउट मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन दैट हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। तो ये जो इंडियन नॉलेज थी, जिसे अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, और क्योंकि उन्हें अरेबिक लैंग्वेज आती थी, ऑब्वियसली ही रेड अ लॉट अबाउट इंडिया, ओके। ही डिडंट नो संस्कृत देन, एंड उन्होंने पहले जो कुछ अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था उसे पढ़ा, एंड देन ही स्पेंट लॉट ऑफ टाइम विद द ब्राह्मण्स, एंड उन ब्राह्मण से उन्होंने संस्कृत सीखी, और फिर उन्होंने संस्कृत में बाकी जो इंडियन लिटरेचर है उसको पढ़ा, ओके। सो it was in Ghazni that Al-Bruni developed an interest in India. This was not unusual. Sanskrit works on astronomy, mathematics, medicine, they have been translated into Arabic from the 8th century onwards. तो ये इंडियन लिटरेचर ऑलरेडी अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए थे, और ये सब अवेलेबल थे, और गज़नी में अल-ब्रूनी ने इन्हीं सब को पढ़ा। When the Punjab became a part of Ghaznavid Empire, जब पंजाब पर अटैक करके पंजाब को शामिल कर लिया सुल्तान महमूद ने, उनके एम्पायर का हिस्सा हो गया पंजाब, ओके। एंड अल-ब्रूनी स्पेंट ईयर्स इन द कंपनी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट। अब उन्हें मौका मिला और उन्होंने यहाँ ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ टाइम स्पेंड किया, ब्राह्मण प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स, एंड ही लर्नड संस्कृत
एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट। और यहाँ से इनको इंडिया की नॉलेज ऑब्वियसली काफ़ी होने लगी और काफ़ी इंटरेस्ट उन्हें आने लगा। वाइल इज आइटिनरी, आइटिनरी क्या होता है? आइटिनरी होता है कि हम जो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं तो उसका पूरा शेड्यूल कि कब कौन कहाँ पर गया, उसे हम आइटिनरी कहते हैं। जब भी कोई टूरिस्ट कहीं जाता है तो उसे ट्रैवल एजेंसी एक आइटिनरी देते हैं कि आपको कब कौन से दिन कहाँ पे ट्रैवल करना है, आपको क्या दिखाने ले जाया जाएगा, उसे आइटिनरी कहते हैं। तो अल ब्रूनी बेसिकली कहाँ पर गए, कितने दिन कहाँ रुके, किस साल में कहाँ उन्होंने बिताया, वो तो हमें ठीक से नहीं पता है। ओके, बट व्हाट वी नो इज़ it is likely that he traveled widely in the Punjab and parts of northern India। उनके लिखाई से, उन्होंने जो लिखा है उससे ये पता चलता है कि वो पंजाब और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी उन्होंने ट्रैवल किया होगा। ओके, ट्रैवल लिटरेचर वॉज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोट। तो इसे ट्रैवल लिटरेचर कहते हैं जो ट्रैवलर्स लिखते हैं। ओके, एंड अल ब्रूनी ने एक इम्पॉर्टेंट जो अकाउंट्स जिस बुक में लिखे हैं उसका नाम है किताब उल हिंद। ओके, नाउ ये हिंद वर्ड के बारे में समझाया गया है ऑन पेज नंबर 117। ओके, नाउ इफ़ यू सी दिस वर्ड कि ये टर्म हिंदू कहाँ से आया। हिंदू किसी रिलीजन का नाम नहीं है एक्चुअल में, ये रिलीजन बाद में इनफैक्ट ये एक रिलीजियस कम्युनिटी को हिंदू नाम से बुलाया जाने लगा, लेकिन पहले ये किसी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए नाम यूज़ नहीं किया गया था। ये द टर्म हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड, ओके, एंड यूज्ड इन द 6th century BCE टू रेफर टू द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु। तो सिंधु नदी, सिंधु जो कि इंदस नदी है, इंदस नदी के ईस्ट में जो जगह है उसको रेफ़र करने के लिए पर्शियन लैंग्वेज में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। ओके, द अरब्स कंटिन्यूड द पर्शियन यूसेज एंड कॉल्ड दिस रीजन अल हिंद। और पर्शियंस ने इस रीजन को अल हिंद के नाम से जाना। एंड इट्स पीपल, और यहाँ पे जो लोग थे उन्हें हिंदी कहकर बुलाया। ओके, तो यहाँ पे जो लोग थे उन्हें हिंदी, हिंदी जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं वो लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे जो लोग थे, लोग रहने वाले, जो लोग इस रीजन में रहते थे उन्हें हिंदी कहा जाने लगा। लेटर द टर्क्स रेफर टू द पीपल ईस्ट ऑफ द इंदस एज हिंदू। और फिर टर्क्स ने इस हिंदी जो लोगों को कहा जाता था उसे फिर वो हिंदू कहने लगे, टर्क्स। ओके, और नन ऑफ दीज एंड फिर उनकी लैंग्वेज, और ये हिंदू जो लैंग्वेज बोलते थे उसे हिंदवी कहते थे। ये हिंदवी वर्ड हमारे इंडिपेंडेंस से पहले तक काफ़ी यूज़ हुआ है और बाद में ये हिंदवी को हम दोबारा से हिंदी कहने लगे। लेकिन गांधी जी ने जब कहा था कि इंडिया की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और उन्होंने कहा था कि हिंदवी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ये हिंदवी में अभी जो प्रेजेंट डे हिंदी है उसमें उर्दू काफ़ी यूज़ होती थी, ओके, जो कि चलन अब बंद हो गया है। ओके, तो हिंदवी एंड हिंदी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब तो ये वर्ड हिंदवी यूज़ नहीं होता है, बट उस समय जो हिंदू और उनकी जो भाषा है उसे हिंदवी कहा जाता था। ओके, तो ये जो बुक लिखी है अल ब्रूनी ने, इसीलिए इसका नाम भी उन्होंने दिया है किताब उल हिंद, क्योंकि इस जगह को हिंद कहा जाता था, इसीलिए उन्होंने किताब उल हिंद इस किताब का नाम रखा है, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ पर बिताए हुए सालों के अकाउंट्स के बारे में लिखा है। ओके, जो कुछ उन्होंने यहाँ पे जाना उसके बारे में लिखा हुआ है। अल ब्रूनीज किताब उल हिंद, इट इज़ रिटन इन अरेबिक। पहले तो हम लैंग्वेज देख लेते हैं। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस, बट उन्होंने जिस लैंग्वेज में लिखा है जो शायद उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रही होगी, तो किताब उल हिंद ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। एंड एक सिंपल लैंग्वेज है, बहुत टफ नहीं है। कुरान भी अरेबिक लैंग्वेज में है, लेकिन वो एक बहुत टफ लैंग्वेज में है। जैसे हम संस्कृत देखते हैं कि संस्कृत में ऑब्वियसली जो लिटरेचर्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट संस्कृत भी है, और फिर बाद में जाके हम देखते हैं कि एक इजी संस्कृत का भी काफ़ी यूज़ हुआ कई लिटरेचर्स में। ओके, तो यहाँ पर ये अरेबिक में उन्होंने ये बुक लिखी किताब उल हिंद, एंड इसमें 80 चैप्टर्स हैं, एंड ही हैज़ डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, इसमें केवल इंडियन कल्चर के बारे में नहीं है, और ये इसमें सब कुछ है। इट्स अबाउट फिलॉसफी,
It's about festivals, astronomy, alchemy, manners and customs. Alchemy is about medicine. Okay, so manners and customs, social life, weights and measures, iconography, laws and metrology. तो और different topics पर उन्होंने लिखा है. Okay, generally though not always, Al-Biruni developed a distinctive structure in each chapter. और उनका लिखने का एक तरीका था कि वो हर चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन से शुरू करते थे और फिर उसे वो बाद में एक्सप्लेन करते हुए आगे लिखते थे. उनका ये बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल माना जाता है. ओके, अल-बिरूनी हु रोट इन अरेबिक प्रोबेबली इंटेंडेड हिज वर्क फॉर पीपल लिविंग अलॉन्ग द फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. वो लिख किसके लिए रहे थे? ये वो शायद उनके लिए लिख रहे थे जो कि सब कॉन्टिनेंट के बॉर्डर्स पर रह रहे थे, उन लोगों को बताने के लिए कि आखिर इंडिया है क्या, और उन्हें बताने के लिए ये बुक उन्होंने लिखी थी. एंड ही वॉज फेमिलियर विद ट्रांसलेशंस एंड अडेप्टेशंस ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत. तो ये हमारी जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, पाली, प्राकृत, ब्राह्मी एंड ऑल, तो ब्राह्मी का तो नहीं जिक्र है इसमें. ओके, बट पाली एंड प्राकृत में जो हमारे टेक्स्ट हैं, मेनली बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट की बात हो रही है. ओके, तो ये जो पाली एंड प्राकृत में जो टेक्स्ट थे वो भी अल-बिरूनी ने पढ़े. एंड ओके, हियर दीज रेंज फ्रॉम फेबल्स टू वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन. तो कई कहानियाँ और एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन पर उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा. However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly